Hi everyone, my name is Akriti Sharma and I am your English teacher for class 12 CBSC, and I've been posting these videos to cover your syllabus for the term 2 examination. And right now we are doing the rat trap. This is a story from the pro section of your Flamingo book, and I've already posted some videos. We are halfway through the story, and because the story is very long, so I have divided the explanation into 6 parts. So right now we've done 2 parts and we are starting with the third part. So I hope you like it, and let's get started. So right now we have covered, I'll just give you a brief idea about from where we started and till what point we have reached. So we have actually reached the point till the vagabond or the tramp, what who you may call the peddler, he has already got trapped into the forest, and then he saw an iron mill, and there he has entered the iron mill and actually asked permission from the smiths to sit there, and they have nodded and given him the permission without even talking to him, and he has been standing there to get the heat of the forge. Now let's get ahead. Okay, the tramp did not say anything either. क्योंकि आयरन स्मिथ्स ने उसे कुछ नहीं कहा, तो ट्रैम्प ने भी फिर कुछ नहीं कहा, बिकॉज ही डिड नॉट गो देयर टू टॉक. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. Actually, his main motto to go there was to just warm himself and sleep. He wanted a safe place. उसको क्या चाहिए था? थोड़ी गर्मी चाहिए थी, because it was December 23rd night. तो उसको थोड़ी गर्मी चाहिए थी क्योंकि बहुत ठंड थी, और because he was a vagabond, homeless and jobless, उसके पास कोई घर नहीं था, he didn't have a place to go, तो उसको शेल्टर चाहिए था. Like he went to the crofter's place क्योंकि उसको शेल्टर चाहिए था. Okay. In those days, the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. Now, this is not Ramjo. इसका मजनू कोई नहीं बनाएगा. This is Ramjo. Ramjo iron mill, okay, was owned by a very prominent iron master. वहाँ पे काफी माने जाने आयरन मास्टर थे, आयरन मास्टर जिसका आयरन मिल होता है, तो वो थे. एंड ही वॉज अ गुड मैन. ही वॉन्टेड टू शिप आउट द बेस्ट आयरन, मतलब वो बहुत अच्छा काम डिलीवर करना चाहते थे. बीइंग ऑन द प्रोडक्शन एंड, वो अपना प्रोडक्शन बहुत अच्छा रखना चाहते थे. तो द राइटर वांट्स टू से, इसीलिए वो बार बार राउंड्स लगाते थे इंस्पेक्शन के. तो जब वो आएंगे तो ही इज ऑन हिज नाइटली राउंड, जो रात में जो इंस्पेक्शन का वो चक्कर काटने आएगा, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं. ओके. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन रात नजर रखता था कि जो काम हो रहा है उसका वो सबसे अच्छा होना चाहिए. द क्वालिटी शुड बी वेरी गुड जो उसके अंडर में काम हो रहा है. एंड एट दिस वेरी मोमेंट he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और इस समय जब वो वैगाबॉन्ड वहां पर आया था, खड़ा हुआ था, तो उसने एंट्री करी आयरन मास्टर ने. और क्या देखने आया था वो? एज यूजुअल कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब इसका क्या मतलब है कि जब वो वहां पर आया तो नेचुरली उसने जो दो उसके काम करने वाले थे, लाइक द आयरन स्मिथ और उसका जो वो था अक्वेंटेंस था, एप्रीहेंटिस जो उसका असिस्टेंट था, उसके अलावा उसने एक तीसरे आदमी को देखा. Because he was a tall one. And what is the meaning of ragamuffin? Ragamuffin means पूरे rags में covered, जो उसके जितने भी कपड़े थे पूरे rags थे. He was covered in rags. Who had eased his way so close to the furnace. जो भट्टी थी वो उसके इतना पास चला गया था कि जो उसके कपड़े गीले हो रहे थे उसमें से स्टीम निकल रही थी गर्मी की वजह से. भट्टी से उसको स्टीम लग रही थी. गीला कपड़ा आग के पास रखते तो उसमें से स्टीम निकलती है ना, वही उसके कपड़ों के साथ हो रहा था. तो आयरन मास्टर ने सबसे पहले जाके उसको नोटिस किया कि ये नया आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है. ओके. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. अब ये क्या कह रहा है कि जो आयरन मास्टर था उसने जो बाकी के आयरन स्मिथ्स थे उनका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, मतलब उनके पद चिन्हों पे नहीं चला. उसने क्या किया, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेन्ड. व्हाट इज डेन्ड?
who had hardly deigned to look at the stranger. मतलब वो उसका जो स्ट्रेंजर की जो अपीयरेंस थी वो इतनी खराब थी, उसका जो उसका जीवन स्तर था वो इतना खराब था कि जो आयरन स्मिथ्स थे, they did not even allow themselves to stoop so low to talk to a person of his outwardly appearance. उनको ऐसा लगा कि इतने निम्न स्तर के आदमी से हम बात करके अपने आप को नीचा नहीं करते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ डेन, टू स्टूप लो टू सम बडीज लेवल. तो उन्होंने ही हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उन्होंने स्ट्रेंजर्स की तरफ देखा भी नहीं था. दे जस्ट नॉडेड कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ. दे डिडंट इवन ऑनर हिम विद अ सिंगल वर्ड. तो लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat. Slouch मतलब लुझगुन सी हैट होती है ना, वो एक तरफ झुकी होती है, slouch hat, to get a better view of his face. उसने क्या किया, उसके पास गया, बहुत केयरफुली उसको देखा, उसकी जो रैगामफिन के ऊपर, जो पेडलर के ऊपर जो उसकी टोपी थी उसने वो भी हटाई, उसका ढंग से व्यू आ जाए. लेकिन वो आया नहीं. ओके, उसने ढंग से उसका चेहरा देखा लेकिन वो समझ नहीं पाया. नाउ बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलॉफ. अब उसने क्या सोचा आयरन मास्टर ने कि ये नील्स ओलॉफ है, जो कि ये था नहीं, हम आगे पढ़ेंगे. बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओलॉफ, ही सेड. ये तुम ही हो. उसको लगा कि कोई जान पहचान वाला है उसका आदमी. हाउ यू डू लुक, आप दिखते कैसे हैं, तुम कैसे दिख रहे हो. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsher and did not even know what his name was. अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आयरन मास्टर और पेडलर में आपस में कोई जान पहचान नहीं थी पहले से. The Iron Master mistook the peddler to be Nils Olof. And who is Nils Olof? उसका एक पुराना आर्मी बडी था, क्योंकि ये जो आयरन मास्टर था ये भी कॉमराडी था, ये एक रेजिमेंट में काम करता था. ही वॉज अ आर्मी पर्सनल जब वो अपने यूथ में था, मतलब रिटायरमेंट से पहले उसकी सर्विस कहाँ थी, आर्मी में. ओके, बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस. अक्वेंटेंस मतलब जान पहचान का, पुरानी जान पहचान, ओल्ड अक्वेंटेंस. he might perhaps throw him a couple of krona. Krona is Swedish currency. जो उसने क्रॉफ्टर से भी 30 क्रोना लिए थे ना, वहां भी आया था ये वर्ड. क्रोना इज स्वीडिश करेंसी. ओके, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. अब उसने क्या सोचा पेडलर ने कि अगर ये जेंटलमैन, इफ ही थिंक्स ऑफ मी एज हिज ओल्ड अक्वेंटेंस, अपने पुराने जान पहचान वाले के तौर पे मुझे ये देख रहा है, तो ये शायद मुझे 1-2 क्रोना दे दे, क्योंकि ही वॉज अ पेडलर और उसकी स्थिति बहुत खराब थी. एंड 2 क्रोना वुड मैटर हिम अ लॉट. तो उसने सोचा, इसलिए उसने एकदम से नहीं कहा कि नो आई एम नॉट नील्स ओलॉफ एंड यू आर मिस्टेकिंग मी. उसने क्या सोचा, ही हैड दिस होप कि मुझे 1-2 क्रोना ये दे देगा. ये सोच रहा है कि मैं इसका ओल्ड अक्वेंटेंस हूँ एंड ही सीइंग मी इन सच अ पिटिएबल कंडीशन, ही माइट थ्रो 1 or 2 क्रोना ऑन मी. But and he did not want to undeceive him all at once. Undeceive मतलब उसका धोखा खत्म नहीं करना चाहता था. Undeceive, deceive किसी को करना मतलब अपने अपीयरेंस से, अपनी बातों से धोखा देना. Deceive is basically धोखा देगा and undeceive is धोखे को खत्म करना. तो धोखे को खत्म नहीं करना चाहता था वो. I hope this much is clear. Now what happened? God knows things have gone downhill with me, he said. अब ये किसने कहा, ये पेडलर ने कहा कि हाँ, कि भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें बहुत खराब हुई हैं. Things have gone downhill with me. You should not have resigned from the regiment. Now the Iron Master says कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, because he thinks कि ये रेजिमेंट का उसका साथी है. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. वो कह रहा है उसको कि because you resigned, you are in this condition. अगर मैं उस समय अपॉइंटेड होता, if I had been still in the service, अगर मेरे ये रेजिग्नेशन से, मेरे जो ये रिटायरमेंट से पहले की बात होती, तो मैं तुमको ऐसा नहीं करने देता. नाउ अब हमें यहाँ से 2 बातें मालूम चलती है. एक तो ये कि जो नील्स ओलॉफ था उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था.
उसका नेचुरल रिटायरमेंट नहीं था जो 60 ईयर्स पे यहाँ पे हो जाता है ना हमारा, वो सब इसने उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। और वो ये कह रहा है कि आयरन मास्टर मैं होता तो तुमको ये काम करने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी एंड नाउ आप मेरे साथ अब चलोगे। तो एक तो हमें ये बात समझ में आई कि इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, और दूसरी आयरन मास्टर की नेचर के बारे में। आयरन मास्टर वॉज अ काइंड मैन, वो काइंड मैन था। लेकिन एक बात और भी समझ में आ रही है जो आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर आप कैरेक्टर स्केच भी बनाते हैं आयरन मास्टर का, तो इसमें एक बात क्या समझ में आ रही है आपको कि जो आयरन मास्टर था ही वॉज इम्पल्सिव इन नेचर, बहुत इम्पल्सिव था वो। उसने उसका चेहरा देखा और ढंग से उसने हैट भी हटाया, लेकिन वो इतनी जल्दी में था उसने तुरंत उसको पहचान लिया, नील्स ओलॉफ। उसने 2 मिनट नहीं लगाए ढंग से देखने के लिए, कोई और भी हो सकता है। तो हिज नेचर वॉज वेरी इम्पल्सिव, और फिर उसने पहचान के उसको और फटाफट इन्विटेशन भी दे दिया दैट यू हैव टू कम विद मी टू माई होम नाउ टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस। नाउ व्हाट इज अ मैनर हाउस? ये क्या होता है मैनर हाउस? ये आयरन मास्टर रिच दिखाया है, इसका मैनर हाउस दिखाया है। मैनर इज बेसिकली अ हाउस जिसके चारों तरफ बहुत सारा खुला एरिया होता है, फील्ड्स होते हैं बेसिकली, तो वो होता है मैनर हाउस। और आयरन मास्टर वहां पे रहता था। ये अमीरों के काम है। I will to go along to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. Old regimental comrade, okay? तो ये क्या है? That, however, did not please the tramp. तो ट्रैम्प क्यों नहीं जाना चाहता था? नॉर्मल कोई आदमी होता तो शायद वो चला भी जाता उसके घर पे टू रिसीव ऑल द हॉस्पिटैलिटी जो वो ऑफर कर रहे थे। बट देन उसने सोचा कि ये ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब एक आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड, तो आप सोचिए वो स्ट्रिक्ट होगा, वो जजमेंटल भी होगा, जो ऑब्वियसली जो इनकी वो होती है, इनके बारे में ओपिनियन होता है। तो ही डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। जैसे वो एक कोई चोरी करके आए, वो पुलिस वाले क्या शरण लेने चला जाए, इट्स जस्ट लाइक दैट। सो ही डिड नॉट वांट टू रिस्क हिमसेल्फ, क्योंकि उसके अंदर ये बात थी, हिज एलिगरी वाज कि मैं वहां से आया हूं और मैंने क्रॉफ्टर की पैसे चुराए हैं एंड आई हैव फॉलन फॉर द बेट। और वो फॉरेस्ट में ट्रैप होते होते बचा था, बस उसको लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बट देन ही हर्ड द हैमर स्ट्रोक्स, और उसको लगा कि यहाँ पे लोग हैं, और वो बच गया। उसको लगा कि अभी चलो ठीक है, मैं ट्रैप होते होते रैट ट्रैप में बच गया हूँ। लेकिन अब वो दोबारा दूसरे ट्रैप में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि ये जो आदमी था ये ओल्ड आर्मी पर्सनल था, तो उसके लिए बहुत रिस्की था ये। इट वॉज वेरी रिस्की फॉर हिम टू टेक शेल्टर इन अ आर्मी पर्सनल्स हाउस। नाउ लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, इससे मालूम चलता है, ये जो लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड है ना, इससे मालूम चलता है कि वो इस बारे में कितना कॉन्शियस था कि मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। नाउ ही थॉट ऑफ द 30 krona। ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताया, to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. Lion's den, आ बैल मुझे मार। कि उसको ये लगा कि मैं ये अभी चुरा के ला रहा हूं और मैं अब इसको लेके 30 krona को लेके इसके घर में चला जाऊं। इट वुड बी, मैं अपने आप को एक शेर के पिंजरे में फेंक दूं कि आ शेर मुझे खा ले। इट्स दैट रिस्की, दैट इज व्हाट ही फेल्ट। सो ही डिड नॉट वांट टू गो एंड ही वाज वेरी स्टबर्न कि नो आई विल नॉट गो। नाउ सी, he only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. What is inconspicuously? बिल्कुल चुपचाप, बिना नोटिस हुए। स्नीक अवे, स्नीक का मतलब ही है कहीं जाना चुपके से, ओके। स्नीक अवे इनकंस्पिक्युअसली एज पॉसिबल। उसे सिर्फ गर्मी चाहिए थी, और वो जैसे ही जितनी जल्दी सुबह होती वो पहली किरण के साथ वहां से निकल जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट एनीथिंग मोर, इसीलिए उसने मना किया। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योरसेल्फ देयर। अब ये कौन बोल रहा है? आयरन मास्टर। आयरन मास्टर इज सेइंग प्लीज डोंट थिंक कि मेरा घर इतना अच्छा है एंड आई एम लिविंग इन अ मैनर हाउस सो यू कैनॉट शो योरसेल्फ अप देयर। आपको जाते ही वहां पे उसे लगा ही इज फीलिंग कॉन्शियस कि उसके कपड़े ऐसे हैं बिकॉज ऑफ हिज आउटवर्ड अपीयरेंस एंड हिज रैग्स। ही इज फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड टू गो टू माई हाउस, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको लगता है ही इज फीलिंग एम्बेरेस्ड। तो वो उसको कंफर्ट करने के लिए कहता है इट्स ओके इफ यू हैव दीज क्लोथ्स, डोंट फील एम्बेरेस्ड टू शो इन टू
to show up to my house. क्योंकि अब वो उसको और कंफर्ट करने के लिए आगे बोलता है. He said, Elizabeth is dead. Elizabeth कौन है? आयरन मास्टर की वाइफ. Now he says कि एलिजाबेथ मर चुकी है. As you may already have heard, शायद तुमने सुना हो, क्योंकि उसको तो लगता है ना कि वो अक्वेंटेंस है, तो उसको लगा शायद इसने सुना हो कि माई वाइफ इज डेड, माई बॉयज आर अब्रॉड, उसके बच्चे बाहर थे, एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. वो सिर्फ अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ रहता था उस मैनर हाउस में ना. उसकी बेटी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम था एडला. यहाँ पर अभी आया नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. अब उसको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मना कर रहा है आने के लिए. कन्विंस कर रहा है कि हम अभी बोल रहे थे बस कि क्रिसमस है कल और हमारे लिए, हमारे पास कोई है नहीं साथ में मनाने के, ओनली बोथ ऑफ अस टू treat each other nicely and to exchange gifts with each other and make merry. सिर्फ दो ही लोग हैं हम लोग. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. मेरे साथ चलो और जो हमारा जो क्रिसमस का खाना बना है, जो फीस्ट बनी है, उसको जल्दी खत्म करने में हेल्प करो. But the stranger said no. But the stranger said no and no and again no. ये कितनी बार दिखाया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था. And the iron master saw that he must give in. आयरन मास्टर को लगा नहीं, इसे तो मानना ही चाहिए. ये नो नो बोल रहा है लेकिन नहीं, इसे मानना ही चाहिए. It looks as though Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight, Sternstorm. अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टाल जो है आज तुम्हारे साथ रहना चाहता है, स्टर्नस्टॉर्म. स्टर्नस्टॉर्म कौन है? इसका आयरन स्मिथ जो वहां पे काम कर रहा है. कैप्टन वॉन स्टाल क्यों बोला इसने? क्योंकि ये इसको कैप्टन वॉन स्टाल ही समझ रहा था, नील्स ओलॉफ, वो दोनों एक ही आदमी, यही समझ रहा था इसको. ठीक है, तो उसने बोला कि ऐसा लगता है जैसे कैप्टन वॉन स्टाल आज तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करना था जाने के लिए. He said to the master blacksmith and turned on his heel. टर्न ऑन हिज हील मतलब जैसे हम लोग टर्न करते हैं ना, ऐसे करके और चला गया. लेकिन ब्लैक स्मिथ ने समझ लिया था, क्योंकि वो अपनी मास्टर की एक एक हरकत से वाकिफ था. ही अंडरस्टूड क्लियरली दैट माई मास्टर इज नॉट कन्विंस्ड और दिस इज नॉट द लास्ट दैट ही हैड टॉक्ड, और ये जाएगा कुछ ना कुछ और करेगा. क्या करेगा वो उसको मालूम नहीं था. नाउ बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. अपने आप में हंसा और अपनी हील्स पे टर्न करके आगे चला गया. Now, it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने साउंड सुनाई दिया उनको. किसका? कैरेज व्हील्स का. कैरेज होता है ना, बग्गी जिसको बोलते हैं, उसके पहियों की उनको आवाज सुनाई दी. नाउ फोर्ज के बाहर, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था. कौन आया? वील सी. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अब उसने क्या किया था? उसने अपनी डॉटर को भेजा था उसको मनाने के लिए, सोच के that she might be more persuasive than himself, because as he was her father, he knew कि उसका नेचर कैसा है. She was very kind and loyal and she was very compassionate. तो उसने सोचा कि अगर मैं नहीं तो शायद ये उसको मना सके घर जाने के लिए. She may convince him to come home. तो इसलिए उसने उसको भेजा था. And her name is Edla Wilmanson. Now she entered, followed by a valet. अब ये valet कौन है? ये जो valet parking हम लोग देखते हैं ना, तो ये बेसिकली एक सर्वेंट के लिए एक वर्ड होता है जो हमारे कैरेजेस को या व्हीकल्स को पार्क करने में और लाने में यूज करते थे. पर यहाँ पे एक ओवरऑल मीनिंग जो वैले का है वो है सर्वेंट. ठीक है. नाउ कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. फर का कोट लेके आया था वो अपने हाथों में, आर्म पे. she was not at all pretty but seemed modest and quite shy. What is modest? विनम्र,
सुंदर बिल्कुल नहीं थी. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, बट शी वॉज वेरी मॉडेस्ट एंड शाय. शाय मतलब शर्मीली. ओके. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. फॉर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि अर्लियर इवनिंग में हो रहा था. वो अपना उनका काम चल रहा था और आवाजें आ रही थी, सब कुछ सेम था. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस क्या होता है? जो किसी के अंडर में काम करता है काम सीखने के लिए. मीनवाइल वो पे भी उसको करते हैं और वो काम भी सीखता है. तो मास्टर ब्लैक स्मिथ का एक अप्रेंटिस था, मतलब इसका असिस्टेंट. ओके. असिस्टेंट था इसका. स्टिल सैट ऑन द बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. वो अपनी बेंच पे बैठे थे और आयरन और चारकोल जो है वो भट्टी में चमक रहा था क्योंकि वो गर्म था और वो फॉर्जिंग का काम कर रहे थे ऑब्वियसली. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर. जो स्ट्रेंजर था, जो पेडलर था, वो उसने अपने आप को जमीन पे फैला लिया था. स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. और जो एक पिग आयरन का एक पीस था वो अपने सर के नीचे तकिए की तरह लगा के वो लेटा हुआ था. एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज. और अपनी आंखों को उसने अपने टोपे से ढक लिया था. जो उसका हैट था ना, जो आयरन मास्टर ने उठा के देखा था, उससे उसने ढक लिया था अपनी आईज को. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, she went up and lifted his hat. जैसे ही उसने उसको देखा ना, वो गई उसके पास और उसने उसका हैट उठाया. Lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब जो आदमी था ना, because he was a peddler and he was homeless, उसने कई सारी रातें अपनी फुटपाथ पे और जगह जगह इनसिक्योर प्लेसेस में बिताई थी. When we sleep inside our houses, we are very secure. ताला वाला लगा के अच्छे से सो जाते हैं. हमें कोई चिंता नहीं होती कि पीछे से कोई आएगा, हमारा कोई बैग ले जाएगा या हमारा कुछ सामान ले जाएगा, ये मे हर्ट अस. ऐसा कुछ नहीं होता है. हम सिक्योरली सोते हैं. बट उसके साथ तो ऐसा नहीं था. ही वॉज अ होमलेस पर्सन, इसलिए उसको बहुत अटेंटिवली सोने की आदत थी. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चिड़िया की नींद, बिल्कुल अटेंटिव, कि कोई भी आया घात लगाने और चिड़िया को समझ आ जाता है. तो वो वैसे सोता था. तो जैसे ही एडला ने उसकी हैट उठाई, वो एकदम से कूद के बैठ गया. उसको लगा कि कोई उसके ऊपर कोई हमला हुआ है किसी चीज का, या कोई आदमी आया है उसको कुछ परेशान करने या उससे कुछ लेने, क्योंकि वो इस चीज का आदी था. Evidently used to sleeping with one eye open, he jumped abruptly and seemed to be quite frightened. बहुत डर गया वो, क्योंकि वो एकदम से उठा था. ओके. नाउ अब ये हमारा एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर खत्म हो गया है. अभी इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं. तो क्वेश्चन एक ये था कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन टू गो टू आयरन मास्टर्स हाउस. तो अब इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि ही डिक्लाइंड इट बिकॉज ही हैड स्टोलन द मनी एंड वैसे ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ही डिड नॉट वांट टू फॉल इन द ट्रैप अगेन. सो as he came to know that he was an old army comrade, उसने डिक्लाइन कर दिया because he thought that it would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. Okay, and एक क्वेश्चन इसमें ये है that I think there is one question. The peddler, why did the peddler think himself that he's got trapped in the rat trap? तो इसका क्वेश्चन आंसर ये है, आंसर कि जो पेडलर था उसकी एक थ्योरी थी. And when he stole the money from the crofter's house, and then he got caught in the forest, and the forest, the paths in the forest, they intermingle with each other so confusingly that he did not like find any place to escape the forest, and he thought that the forest would be like an impenetrable prison on him. He would never be able to escape it and he will lose his life in the forest. So basically he thought that it was his turn now. So he thought that he has been lured by the bait, which was a 30 krona, and he had been caught. He was very convinced. His confidence was just shattered while he was feeling very pleased that he has stolen the money from the crofter. He was very pleased of his smartness. But जैसे ही वो forest में फंसा, his whole confidence shattered.
Now I think this is it for today's explanation, and I'm going to come up with another video जो आगे की story explain करेगा, and hope you liked it, and do like, share, comment and subscribe. Thank you. Bye.